और खुदा का शुक्र करता हूँ। आइए, आज अभी आप सब जानते हैं थैंक्स गिविंग्स होके हटी है और उस पे एक मैं आपको वर्ष देना चाहता हूँ। You all are aware that we recently had Thanksgiving, so I would like to give you a reference on that. आपके आशीष के लिए एक मैं वर्ष रखना चाहता हूँ। हालेलुया। For your blessing, I want to keep this verse for you. Psalm 116 वर्स 12 मेरे साथ कोई निकाल के पढ़ेगा। खुदावंद यीशु मसीह मेरा विश्वास है इस वर्ष से आपको आशीष देगा, क्योंकि थैंक्स गिवन से पे आप सब ने तो बहुत सारी चीजें सीखी है, सुनी है। So we'll turn to Psalm 116 वर्स 12। verse 12. हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई भी पढ़े, अगर हिंदी उर्दू में है तो। हालेलुया। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? What is it written? मैं पढ़ता हूं हिंदी में एक बार। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उसके बदले में उसको क्या दूं? What shall I return to the Lord for all his goodness to me? खुदावन ने जितने भी मेरे ऊपर उपकार की, जितनी भी मेरी मुझे नेमतें दी है, मैं उसको क्या दूं? What can I give God in return for all the blessings that he's given me? क्या चाहता है खुदावंद हमसे? What does God want from us? क्या चाहता है खुदावंद हमसे? सिर्फ ओनली शुक्रगुजारियां। All God wants from us is thanksgiving. हालेलुया। एक्चुअली ये मेरा टॉपिक नहीं ले, सिर्फ ये मैं आपके लिए मैसेज छोड़ा है कि खुदावन क्या, दाऊद नबी क्या कहता है कि जो मुझे खुदावन, जो तूने मेरे ऊपर उपकार किए उसके बदले मैं तुझे क्या दूं? Even David says that what can I give you, Lord, in return for all the goodness? और मैं चाहता हूं कि आप सब शुक्रगुजारियां खुदा को हमेशा दिया करें। So I would like all of us to give God the thanksgiving. तो मैं आपके सामने पतरस के बारे आज बात करना आया हूं। Today I'm going to speak about Peter. हालेलुया। मैं पतरस के बारे आपसे आज कुछ बातें जो है खुदा ने मेरे मन में डाली है, मैं चाहता हूं कि उसके बारे में बातें करें। उसके बारे में 5 बातें मैं करूंगा आपसे कि उसके अंदर कौन सी बातें थी जिसकी वजह से आज खुदावन यीशु मसीह ने पतरस को कहा मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Lord has put this word in my heart. I'm going to speak to you about Peter and about 5 things that he had. आइए मेरे साथ निकालें पतरस चैप्टर, लूका की इंजील उदा 5 बाब उदी 1 वर्ष लेके और 11 वर्ष तक हम ध्यान करेंगे। So we'll turn to Luke 5. We're going to open and look at verse. हालेलुया। हाँ जी, 1 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक कोई भी पढ़े। From verse 1 to 11. जी, Luke 5 chapter, Luke 5 chapter, Luke 5 verse 1 to 11। हाँ, हालेलुया। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। इतने खुदावंद दे कलाम दे विच ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ।
We see in this passage from verse 1 to 11 about Peter. ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੋਣ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ। So the Peter was chosen over here, and similarly, I was also chosen like that. ਪਤਰਸ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। Peter was an illiterate, and he was a fish catcher. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਰਸ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਛੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। We see that he worked entire night. He was working very hard to catch fish, but he couldn't catch anything. ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। He worked really hard the entire night, but in the morning he was disappointed because he couldn't catch anything. ਜਦ ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Similarly, we as well, sometimes we put in our hard work, but we become unsuccessful. ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। We do business, we fail in that. We do some job, we fail in that. Even in study, sometimes we fail ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। because the God is not with us. ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। Here today, the Lord was not with him. ਪਤਰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। Peter had worked really hard. ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 5 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 11 ਇੱਕ ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 11 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। From this passage, today we're going to learn 5 things. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। So we see that when he caught fish, there was 2 boats present over there. Yes. Okay. ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪਤਾ ਜਲਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗॉड ब्लेस। हालेलुया। 2 कश्तियां सी होते। अब हम देखेंगे 2 कश्तियों में से पतरस की कश्ती क्यों खुदा ने मांगी। So there were 2 boats, and we'll see why God asked for Peter's boat. आज खुदावन मेरी और आपकी भी कश्ती को मांग रहा है। Today God is asking for your and my वो boat. मेरी और आपकी कश्ती में भी आना चाहता है। He wants to come in our boats. जब तक वो खुदावन मेरी और आपकी कश्ती में नहीं आएगा मुझे और आपको बरकत नहीं मिलेगी। Until and unless Jesus comes in our boat, we won't receive a blessing. आज मुझे और आपको कहना कि खुदावन काश कि तू मेरी कश्ती में आ जा। Today, you and I, we have to ask God to come in our boat. और उसने पतरस को कहा मुझे अपनी कश्ती दे। And he asked Peter to give me your boat. नंबर 1, पतरस ने क्या किया? पतरस ने खुदा की बात को सुना। So the first thing is Peter listened to the God. नंबर 2, उसने उसकी आज्ञा को माना। And the second is that he obeyed God's command. नंबर 2 क्या किया? What's the second thing he did? पहला नंबर क्या मैंने बोला? लिसन, ठीक है? उसने सुना. उसने सुना। दूसरा उसने क्या किया? हाँ, और तीसरी बात मैं आपके सामने रखूंगा बाद में, फिर उसने अपने आप का इनकार किया। And the second thing he did is he हाँ, उसने अपने आप का denied himself. डिनाई किया। यस, उसने अपने आप का इनकार किया। तीसरी बात, ये 3 चीजें जो है उसको करनी पड़ी। 2 चीजें मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि 2 चीजें पतरस की जिंदगी में कितनी बड़ी हुई जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसने संगति की। एनीवे, जब पतरस ने देखा कि मेरे पास कुछ नहीं आया, When Peter saw that he did not catch anything, उसने कहा मुझे अपनी कश्ती दे। the Lord asked him for his boat. वो जाल धो रहे थे, They were washing their nets. घर जा रहे थे, They were going home. अपनी हिम्मत हार चुका था। And he was अब already वो disappointed. सोचता था मेरे बच्चों को मैं सुबह सुबह जाऊंगा तो क्या खाली हाथ लेके जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? मैं खाली हाथ गया तो मेरे बच्चे निराश हो जाएंगे। He was thinking to himself that if I go empty-handed to कोई my house, बरकत नहीं उसके पास, he had no वो blessing. खाली है। He was empty. उसको मालूम नहीं आज सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह उसके पास आ गया। He was not aware that the Almighty God was close to him. खुदावन जिसके पास आ जाता है The one that Lord goes to, उसकी जिंदगी में बरकतों ही बरकतें आ जाती है। that person receives immense blessings. उसने कहा मुझे अपनी कश्ती दे। He said, give me your boat. उसने अपनी कश्ती दी। He gave his boat. उसने उसकी आवाज को सुना। नंबर 1, He listened to his voice. उसने उसकी आवाज को सुना।
He listened to his voice. क्या सुना? What did he hear? उसने कहा पतरस मुझे अपनी कश्ती दे। He said, Peter, give me your boat. और उसने अपनी कश्ती को उसको दे दिया। And he gave his boat to him. तो सबसे पहले पतरस ने क्या किया? And what was the first thing he खुदा Peter के did? कलाम को सुना। हालेलुया। He heard the word of the Lord. पहले कुछ नहीं था उसके पास। He had nothing before. अब जब खुदा ने वचन को सुनाया, But when the Lord revealed the लिखा word के to him, भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ रही थी। it says that the crowd was coming around them. हालेलुया। भीड़ उसके ऊपर गिर रही थी। The people were crowding around him. लेकिन भाई और बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब पतरस ने अपनी कश्ती दी तो क्या हुआ? So my dear brothers and sisters, today I want to tell you what happened when Peter gave his boat. जब उसने अपनी कश्ती दी तो उसमें खुदावन ने वचन को सुनाया, और वचन सुनाने के बाद पतरस को कहा, चल अब मैं तुझे कहता हूं, अब जाल डाल। So first thing, when Peter gave his boat, the Lord preached from his boat, and then he told him to go into deeper water. पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, मैं अभी जाल नहीं डालूंगा, मैंने बहुत मेहनत कर लिया, मुझे पता है यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। Peter said that, no, Lord, I have already worked really hard. I know I'm not सारी gonna catch a lot." रात मैं और मेरे दोस्तों ने बड़ी मेहनत की, हमें कुछ नहीं मिला। The entire night, me and my friends, we've worked really hard, but we haven't got anything. खुदावन यीशु मसीह ने कहा, अब मैं तुझे कहता हूं, जाल डाल। But the Lord Jesus said that I am telling you to go. जब उसके कहने पे उसने जाल डाला तो क्या हमने पढ़ा आगे कि इतनी मछली आ गई कि उसके लिखा है कि जाल दोनों किश्तियां भर गई। When he obeyed and he threw his net, he received so much fish that the nets were breaking. इतनी मछली आ गई कि लिखा कि दोनों ना भर के जाल फटने लगे। It was so much fish that both the boats could not contain it. भाई और बहनों, जब खुदावन यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आता है तो आपको बरकत जो ओवरफ्लो हो जाती है। Dear friends, when Lord Jesus comes in your life, you'll have an overflow of blessings. खुदावन ने हमें इंडिया से यहाँ पे क्यों भेजा है? Why God has brought us from India? ऐसा नहीं कि इसलिए हमें भेजा कि जब हमारा पेट भर जाए हम चर्च ना आए। It's not that when we will be filled, we don't come to church. कल हम बात कर रहे थे किसी से, हम कहते हैं कि अमेरिका में ऐसे चर्च हो गए हैं कि लोग चर्च आना पसंद नहीं करते। We were having a discussion with someone, and we were saying that in America there's churches where people don't want to go. क्योंकि जब हम इंडिया में होते ना, हम सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के, अगर वाइफ वहां पे यहाँ पे है तो हस्बैंड बड़ी दुआएं करता है। Because when we are in India, we would get up at 4 a.m., 5 a.m., go to church, because when the wife is here, the husband has to go and pray for her. अगर हस्बैंड इधर है तो वाइफ सुबह उठ के दुआएं बहुत करती है। If the husband is here, then the wife back home would get up early and pray. हम दुआएं करते हैं कि खुदाबंद हम वहां पे अमेरिका में या किसी जहां पे भी उनके रिश्तेदार वहां पे हम पहुंच जाएं, और जब हम वहां पे जाएंगे जब क्या करेंगे? तेरी सेवा करेंगे। We pray that Lord help us to reach that place. You know, it could be any foreign place, and we say that when we reach there, we're going to serve you. याकूब ने एक बात कही, खुदाबंद काश कि तू मुझे घर सही सलामती से पहुंचा दे। Jacob said one thing, that Lord, please help me to reach home safely. और मैं सब कुछ 10% तेरे नाम पे करूंगा, सारा कुछ तुझे दूंगा। And I will give everything to you, the 10%. और जहां पे जब हम आ जाते ना, थोड़े दिन हमारे अंदर जज्बा होता है। When we arrive here, we are zealous only for a little bit. जब कामों में फंस जाते फिर चर्च भी भूल जाते हैं, But then when we get stuck in our work, खुदा का नाम भी भूल जाते हैं, Then we forget सुबह the name 5 of the बजे की दुआ भी भूल जाते we हैं। forget the 5 a.m. prayer. हालेलुया। तो क्या होता है? क्योंकि हमारे पेट भर जाते हैं, इसलिए आते तो हम वहां पे क्या होता है? वहां हमारी जरूरतें होती है, इसलिए हम चर्च जाते हैं। But what happens is when we arrive over here, we are filled, and then we have no urge to do anything. इसी तरह पतरस के पास कुछ नहीं था। That's how Peter did not have anything. पतरस की जिंदगी में और हमारी जिंदगी में बहुत फर्क है। There's a lot of difference between our lives and Peter's. पतरस ने क्या कहा जब देखा कि इतनी मछलियां गए, वो चाहता तो उस मछलियों को बेच के $1 million बना सकता था। When Peter received all that fish, what he could have done is he could have sold all that fish and become rich. उन जमाने में वो मछलियां बहुत महंगी थी।
In those days, those fishes were very expensive. अगर वो चाहता 2 नावें भरी हुई मछलियों की $1,000,000 वो उनको बेच के बिजनेस खड़ा कर सकता था, सब कुछ कर सकता था। If he wanted, he had 2 full boats of fishes, and if he could have sold it for $1 million and set up a business. मेरे साथ एक वर्ष निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 3 चैप्टर 3 एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 20 मेरे साथ पढ़ेंगे। Acts chapter 3, verse वर्स 20. 20 कुछ ऐसे लिखा है, और वह उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया। क्या हुआ? उसने पतरस को क्या किया? क्या लिखा है? मेरे लिए और आपके लिए। So for us and for us, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूं वचन के बारे में। before I go forward, I would like to tell you one. 2000 साल पहले जो है ये कलाम उनके लिए था। 2000 years ago, this word was for them. ये कलाम उनसे बातें करता था। This word used to talk to them. आज की शाम, आज की सुबह यहाँ पे भी जो भी ऑनलाइन है, ये कलाम मेरे लिए और आपके लिए है। Amen. So today in this evening, this word is for you and me. ये कलाम इस वक्त मेरे लिए और आपके लिए बात कर रहा है। So today this word is talking to us. हालेलुया। 20 वर्ष में क्या लिखा है? और वह उस मसीह यीशु And that he may send the को भेजे, Messiah हाँ, who has been जो appointed for तुम्हारे you, लिए पहले ही से ठहराया गया है। who has been appointed for you. हम पापी ही थे, मसीह यीशु मेरे और आपके पापों के लिए मरा। While we were sinners, Lord Jesus died for our sins. हालेलुया। Hallelujah. पहली बात हमने कहा, अगर वो चाहता तो वो सब कुछ बेच के क्या करता? प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देता, मछलियां ले जाता। What Peter could have done is he could have sold all the fish and could have left Jesus as well. उसने उसकी बात को सुना, But he listened to his voice. और उसके बाद नंबर 2 क्या किया? उसने उसकी आज्ञा मानी। And what did he do? The second thing he did was he was obedient to his command. उसकी आज्ञा मान के उसने क्या किया? जाल को डाला। He was obedient to his command, and what जब he did, उसने he उसकी cast out आज्ञा को net. माना, जाल को डाला, तो लिखा भाई हजारों मछलियां उसके जाल में आ गई। When he obeyed and he cast out the net, he received million fishes. एक वर्ष मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 11। निर्गमन चैप्टर 34 Verse 11. वर्स 11 में साथ पढ़ेंगे कोई? हालेलुया। पतरस की जिंदगी से आज मैं और आप सीख रहे हैं कि जब उस खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि गहरे में ले चल, अब गहरे में जाकर डाल, उसने उसकी बात को सुना, फिर क्या किया? उसकी आज्ञा को माना। जैसे ही उसकी आज्ञा को माना, लिखा है कि उसके जाल में बहुत सारी मछलियां आ गईं। हालेलुया। So what are we learning from Peter's life today is that he was obedient to God's word, and when he did what he was asked, he caught a lot of fish. हाँ जी, निर्गमन चैप्टर 34 वर्स 11। जो आज्ञा आज मैं तुम्हें देता हूं, हालेलुया। क्या कहता? अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, मछलियों तो क्या, खुदा का कलाम कहता है, If you would obey my word, what the word of the Lord says, क्या लिखा? कई कौमों को, that he would cast out a lot of tribes, कई शहरों को, a lot of nations, कई देशों को a lot of countries. आपके खुदावंद अधीन कर देगा। हालेलुया। He would bring it under your dominion. आपको मालूम है जितने भी यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं अमेरिका में, पता नहीं कहाँ कहाँ से कंट्रियों से, लेकिन क्या है, राज यहाँ पे कर रहे हैं। You know, all these presidents of the United States, they have come from various countries and they have, been in the office. खुदा का कलाम कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मैं तुम्हें कौमें तुम्हारे अधीन कर दूंगा। That's what the word of the Lord says, that if you do what my word says, then I will drive out the nations before you. हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, अजीजों मेरे भाई और बहनों, पतरस ने उसकी आज्ञा को माना। Dear brothers and sisters, that's what the word says, that Peter obeyed his command. और उसके बाद खुदा का कलाम कहता है, And after that, the word of God says, नंबर 3, और अब उसके पास क्या है? इतनी मछलियां आ गई है, So अब
इतनी मछलियां आ गई है, So he has received so much fish. अब ये वो सोचता है मैं क्या करूं। खुदा ने उसको क्या कहा, अब से आगे को तू जिंदा मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। So he was wondering what he would do with all that. Lord Jesus told him that you'll become a fisher of man. पतरस को अब ये बात समझ आ गई है, So Peter understood this. एक तरफ मछलियां हैं, एक तरफ यीशु है। You know, there's Jesus on one hand and there's fishes on the other. एक तरफ मछलियां हैं, एक तरफ प्रभु यीशु है। There's Jesus on one hand and there's fishes on the other. बहुत सारे भाई बहन ये कहते हैं कि पास्टर जी मैं चर्च नहीं आता क्योंकि मेरा काम है। There's a lot of brothers and sisters, they say that, Pastor, I can't come to church because I have आज मेरे घर में गेस्ट आ गए हैं, Today I have guests coming over. आज मुझे मेरे बॉस ने ड्यूटी पे बुला लिया है, Today I have been मैं called to अपना work. बिजनेस बंद नहीं कर सकता। I cannot close down my business. और यहाँ पे पतरस की जिंदगी में हमने क्या सीख रहे हैं, एक तरफ मछलियां हैं और एक तरफ प्रभु यीशु है। But what we are learning from Peter's life is और- that he has fish on one hand and Jesus on the other. उसने प्रभु यीशु ने क्या कहा, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले, Lord Jesus said, leave everything and come सब follow me. कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले, Leave everything and तो follow me. मैं तुझे जीवित मनुष्यों को पकड़ने वाला बना दूंगा। Then I हालेलुया। will make you fisher of men. सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। Leave everything. मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई और बहनों, आज की सुबह आज की शाम I want to tell you, my dear brothers and आप sisters, कभी भी नहीं ये कहें कि अपने कॉम्प्रोमाइज कभी भी अपने काम से ना करें। do not compromise with your work. मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने काम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, In my life, I have never compromised with अपने work. बिजनेस से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं I किया। have never compromised with my कुछ भी business. हो जाए मुझे संडे को चर्च जाना है। No हालेलुया। matter what may come, I have to go to church on Sunday. मुझे कोई बहाना नहीं, मेरे घर गेस्ट आ जाए मैं उनको बोलता हूँ अगर तुमने आना है तो मेरे साथ तुमको चर्च में जाना पड़ेगा। There is no excuse. Even if I have guests coming over, I tell them you have to come to church with me. आज पतरस ये बात समझ गया है। पतरस को खुदा यीशु मसीह ने कहा सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। Today, Peter understood this. Lord Jesus told him, leave everything and follow me. अब अगर पतरस मछलियों को पकड़ता है तो यीशु जाता है, So now, if Peter continues to catch fish, then he would have to let go of Jesus. मछलियों को पकड़ता तो यीशु जाता, If he would catch fish, then यीशु को पकड़ता तो $1 मिलियन की मछलियां उससे जाती है। and if he goes towards Jesus, then he would lose the $1 million fish. अब उसके अंदर कंफ्यूजन आ गई है, So now he is in a dilemma. आप वो क्या करेगा, Now what would he do? मैं क्या करूं, Now what do I do? मैं क्या करूं, What do I do? मेरी वाइफ लेट हो गई है, लेट हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू नहीं जाना तू ना जा, मैं अकेला ही चर्च चल जाऊंगा। You know, my wife, if you are getting late, if she can come to church बच्चे with me, अगर I'll go. नहीं जा रहे हैं तो ठीक है भाई तुम रहो, मैं तो जाऊंगा चर्च। If kids are not coming along, doesn't matter. I have to go to church. आज पतरस की जिंदगी में तूफान आ गया है, So today in his life there was a turmoil. उसको अपने बच्चों की भी फिक्र है, Now he's worried about his kids. उसको मछलियां की फिक्र है, He's worried about the fish. लेकिन उसको यीशु की भी फिक्र है। But हालेलुया। along with that, he's worried about Jesus उसको as पता well. है कि यीशु कौन है। He हालेलुया। knows who Jesus is. उसको मालूम है कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु है। He knows he's the one that gives आप salvation. ये वो कहता है कि खुदावंद अब मैं अगर मछलियों को छोड़ूंगा तो मेरा यीशु चला जाएगा। Now he says to himself, if I leave the fish, if I don't leave the fish, then अगर I have यीशु को छोड़ दिया तो मछलियां चली जाएगी। if I leave Jesus, then I have to leave the fish. यहाँ पे तीसरी बात हम सीख रहे हैं, उसने अपने आप का इनकार किया। So the third thing we are learning over here Hallelujah. is that he denied himself. उसने अपने आप का क्या किया, इनकार कर दिया। He denied himself. $1 मिलियन की मछलियां छोड़ दी, He left the $1 million. बिजनेस छोड़ दिया, He left the business. सब कुछ छोड़ के He वो left यीशु के everything. पीछे हो लिया। And he हालेलुया। followed Jesus. हालेलुया। सब कुछ छोड़ के वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गया। So he left everything and he followed Jesus. उसको पता था He knew कि मैं यीशु के पीछे जाऊंगा, जितनी अभी मछलियां पकड़ी ना इससे दुगनी क्या मुझे 1000 गुना और मिल he जाएगी। knew that when he follows Jesus, he would receive a bigger and a better blessing. हमें भी अपनी सारी दुखे परेशानियां को छोड़ के यीशु के पीछे चलना We है। also have to leave all our worries and वो follow Jesus. आपके नीचे, आपके कदमों के नीचे आ जाएगी Everything that worries you will जब come under your feet. आप प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर बनते हैं। When you become the follower of Jesus, खुदा का कलाम कहता है, the word of the Lord says, यूहन्ना उसका एक बाप उसकी 12 आयत में लिखा है, in John 1:12 it says, जिन्होंने उसको कबूल किया all those that accepted him, उनको खुदा ने अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया, the Lord has given them the authority to be called his sons and daughters. जिन्होंने उस पर विश्वास किया। The ones that place their trust in him. आज
पतरस ने, मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, पतरस ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। So today, my dear brothers and sisters, Peter put his faith in Jesus. आज उसने पूरा विश्वास कर लिया, He had complete faith. सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे हो लिया और अपने आप का इनकार कर दिया। He abandoned everything and he denied himself and he followed Jesus. आज ये तीन बातें जो है पतरस ने की है। So these three things Peter did. अगर आप ये तीन बातें आप करेंगे, आपके साथ भी वो हो सकता है जो पतरस के साथ हुआ था। So हालेलुया। if you do these three things as well, same thing will happen that happened with Peter. ये तीन बातें पतरस ने की So these three things Peter did, और दो बातें यीशु ने उसके साथ की। and the two things Jesus did with प्रभु him. यीशु ने दो बातें उसके साथ की। Lord Jesus did two things with him. मैं आज पांच बातें आपको बताने आया हूं। I have come here to tell you five दो things, तीन बातें जो है प्रभु ये पतरस को करनी पड़ी। out of which three things Peter had to do. पहली बात उसने क्या किया पतरस ने? What did the first thing Peter did? हेलो, पतरस ने पहले क्या किया? लिस्निंग। दूसरी, हाँ, तीसरा, Denied. अब यीशु उसकी जिंदगी में आ गया। फिर जब उसने अपने आप का इनकार किया, अब प्रभु यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आ गया, क्योंकि उसने कहा मेरे पीछे हो ले। When he हालेलुया। denied of himself, then what happened is Lord Jesus came in his life. जब 3.5 साल तक उसके साथ रहा प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, When he stayed with Jesus for 3.5 years, and when Jesus was caught, पतरस ने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तुझे मालूम है कि मैं पकड़वाया जाऊंगा। Lord Jesus told Peter that you know that I'm going to be arrested. और पतरस ने कहा था प्रभु यीशु मसीह सब भाग जाए लेकिन मैं नहीं भागूंगा। Peter said that everyone may abandon you, but I won't. मैं नहीं भागूंगा, जो मर्जी कर लो। Everyone would run away, but I won't. नए नए आते पतरस जी, हमारे पास्टर जी, हमारे लिए दुआ करो, जब मेरा काम बन जाएगा मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। When we come, we ask Pastor, Pastor, pray for us, when our things gonna be done, we're not gonna leave you. जब सब कुछ हो जाता है, फिर पता नहीं वो एक चर्च छोड़ के दूसरे चर्च छोड़ के तीसरे चर्च में भी वो वहां से भी भाग जाता है। But when everything gets done, what happens is you hop from one church to the other. लेकिन पतरस ने ऐसा नहीं किया। But that's not what Peter did. हमें पतरस जैसा बनना। We have to become like Peter. अगर आप पतरस जैसा बनेंगे ना, तो मैं आपको एक और बात बताऊंगा अभी। If you will become like Peter, I'm going to tell you one more thing. लेकिन खुदावन ने, प्रभु यीशु ने उसको कहा था कि पतरस, जब तक तो 3 बार मेरा इनकार ना कर दे, मुर्गा बांग नहीं देगा। But Lord Jesus told him that you will deny me 3 times and the cock won't. हालेलुया। पतरस ने क्या सीखा? एक और चीज बताऊंगा आपको मैं। What did Peter learn? I'm going to tell you one more thing. मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 73, जरा जोर से पढ़े कोई। Matthew chapter 26, verse 73. जब खुदावन यीशु मसीह को पकड़वाया गया, When Lord Jesus was caught, प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया, तो पतरस भी उसके पीछे पीछे था। Peter was behind him. प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया, पतरस के पीछे पीछे था। वहां पे जो यीशु को पकड़ के ले गए, कुछ लोग वहां पे थे। जब वहां पतरस को देखा तो पतरस को क्या कहा? तू भी उनके साथ था। When Jesus was arrested, there were people around in that place. And when they looked at Peter, they said that you were with them as well. पतरस ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं उनके साथ नहीं था। But Peter denied. दूसरी बार फिर पीटर ने डिनाई किया। दूसरी बार फिर उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। Peter denied again the second time as well. लेकिन तीसरी बारी जब पतरस को कहा, तो मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 73 पढ़े कोई। थोड़े चेर पिछो जेड़े उथे खड़े सी, हाँ, सच्ची मुची तू भी उन्हां विचों आ। हाँ, that's it। क्या? हाँ, सॉरी लाइन पढ़ो प्लीज। हाँ जी, ये बहुत जरूरी है। हाँ, हालेलुया। क्या कहंदा? What did he say? पतरस ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, When Peter was
himself. और दो बातें जो है प्रभु यीशु ने उसकी जिंदगी में डाली. And हालेलुया. then two things Jesus did in his life. ठीक है, तो इसलिए उसके वहां पे जो लोग थे कहते तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, और फिर भी अपने आप को क्या करने लगा, श्राप देने लगा. That's why people over there, they were saying that your accent gives you away. And what he started doing, he started cursing. लेकिन उसने अपनी हिम्मत को नहीं हारा. But he did not give up. और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सारा कुछ सीख लिया, When he learned everything about Jesus, आपको मालूम है खुदावन यीशु मसीह को तो सीधा लटकाया था, और उसने कहा इतना प्यार उसमें भर गया, तो उसने कहा जब मैं मरूंगा मुझे उल्टा लटकाना. हालेलुया. he was filled with such love for Jesus that he said that when I die, you could put me upside down on थैंक the यू cross. जीसस. और पांचवी बात, The fifth thing, जब ये सब चीजें हो गई, when all this came to an end, खुदावन के कलाम में लिखा पांचवी बात उसके अंदर फिर क्या हो गया, प्यार, मोहब्बत. वो प्यार करने वाला बन गया. हालेलुया. so the fifth thing that happened was Peter became someone who loved. क्योंकि यीशु ने उसको पूछा क्या तू मुझसे प्यार करता है. मेरे साथ निकाले जॉन चैप्टर 21 प्लीज. Take out John chapter 21. हम आधा घंटा और लेंगे, बस ज्यादा नहीं. हालेलुया. We'll take another half hour. थैंक यू जीसस. पांचवी बात वो क्या है, वो प्यार करने वाला बन गया. पतरस की बारे बता रहा हूं कि तीन बातें उसने खुद की और दो बातें प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में कर दी. वो कौन सी कर दी, इसलिए आज खुदा के वचन में, खुदा के कलाम में पतरस का जिक्र है. काश कहीं मेरा भी जिक्र इसमें हो. हालेलुया. Today in the word of God, there is Peter's heart. वैसे मेरा है इसमें. मेरा Just नाम like दाऊद. mine. मेरा नाम दाऊद है. My name is David. हालेलुया. मेरा नाम दाऊद है. मेरा नाम इस खुदा के कलाम में है. हालेलुया. My name is David and my name is found in the word of God. Anyway, पांचवी बात, पतरस को खुदावन ने एक बात कही. जॉन चैप्टर 21 वर्स 15 to 17 मेरे साथ पढ़ेंगे. We'll read John chapter 21 verse 15 to 17. भोजन करने के बाद हाँ, खुदावन ने खुद उसको पूछा है, पतरस यूना के बेटे, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्यार मोहब्बत करता है कि नहीं करता. Lord Jesus asked himself, he said to Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? हालेलुया. क्या तू मुझसे प्यार करता है? Do you love me? यदि तू मुझे प्यार करता है तो क्या कर, मेरे मेमनों को जाके चरा. If you love me, you need to feed my lambs. दूसरी बार उसने फिर उसे पूछा, उसने उसे फिर दूसरी बार उसे कहा, हे शमाउन यूना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं. Jesus asked him the second time again, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. उसने उसे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर. So he told him, take care of my sheep. पहले क्या कहा, मेरी भेड़ों को चरा. What did he tell him initially? फिर To कहा, feed my दूसरी lamb. बात उसने कहा, मेरी भेड़ों की क्या कर, रखवाली कर. And the second thing he said, take care of my sheep. हालेलुया. Hallelujah. अब आगे पास्टरों की बारी. हम कहते हैं कि जो कांग्रीगेशन है, जब उनके वो कामों में बिजी हो जाते हैं, नौकरियों पे चले जाते हैं, लेकिन हमारी क्या है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी कांग्रीगेशन की रखवाली करें. हालेलुया. As a pastor, it's our responsibility to take care of our congregation, कि जो हम करते हैं, something that we do. आज प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी रखवाली करता है. Today, Lord Jesus, he takes care of you and I. और पतरस को ये कहता है कि मेरी भेड़ों को चरा और मेरी भेड़ों की रखवाली कर. He told Peter to feed my lamb and take care of my sheep. और तीसरी बार फिर उसने, प्रभु यीशु ने उसे कहा, उसने तीसरी बार Third time he उसे asked कहा, him again, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे
प्रीति रखता है। और उससे कहा, फिर उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। Third time when Peter was asked again, it says that Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. और पांचवी बात हम सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको जब ये बात कही, क्यों कही? क्योंकि वो जानता था कि अब जो पतरस वो पहले वाला पतरस नहीं है जो मछलियां पकड़ता था। अब उसने क्या किया? सब कुछ छोड़ के वो मेरे पीछे हो लिया और उसके अंदर अब मेरी मोहब्बत है। हालेलुया। So this Peter that we see over here is not the one that used to catch fish. So now Jesus knows that he has the love in him. इसलिए पतरस को उसने कहा कि मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। That's why he told Peter that I'm going to build my church on you. आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप, हम सब पतरस की तरह प्रभु यीशु मसीह को प्यार करें। Today Lord Jesus wants that you and I love the Lord like Peter. आज पतरस की जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह आ गया है। Today in Peter's life Jesus has arrived. आज मेरी और आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। Today in yours and my life the Lord Jesus should be there. आज की शाम, आज की सुबह, In this evening, जैसे कि पतरस को खुदावन ने कहा कि तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर। just as Lord Jesus told Peter to take care of my sheep. आज प्रभु चाहता कि हम भी प्यार करने वाले बने, Today Lord wants that we क्योंकि become the प्रभु one that यीशु love. मसीह ने मुझसे और आपसे मोहब्बत की है। Because the Lord Jesus loved you and खुदा I. के कलाम में लिखा है, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, खुदावन ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। In the word of John 3:16 it says that the Lord loved the world so much that he gave his only son. और जो कोई उस पर विश्वास करेगा हलाक नहीं बल्कि हमेशा का जीवन पाएगा। So that anyone who believes in him would not be perished but receive eternal life. आज भाइयों बहनों, अगर मेरी और आपकी जिंदगी में कोई कमी है, Today, my dear brother and sister, if there is some lack in our lives, अभी तक मैंने और आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, if we haven't received our Lord Jesus as our Savior, अभी मैं और आप किसी वजह के कारण, कामों की वजह के कारण हम बैकस्लाइड हो गए हैं। due to some work, we are getting backslidden. आज अगर मेरी और आपकी जिंदगी में बरकत नहीं है, क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है कि मैं और आप खुदा यीशु मसीह से पीछे हटे हुए हैं। If today we haven't received any specific blessing, it could be that because we are not following Jesus. आज समय है कि खुदा यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने, Today is the time to receive Jesus as a क्योंकि Savior. प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। Because the coming of Jesus is अपने very near. पापों से तौबा करें Repent of your sins. और अपने पापों से तौबा करें, Repent of your sins. और क्योंकि खुदा यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। Because the coming of Lord Jesus is very near.